मुक्तेजर वीसा साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुक्तेजर वीसा साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। 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 On the 122nd birth celebrations of Baba Saheb Ambedkar, we the people of India do appeal to the government to legislate special component plan for scheduled castes and scheduled tribes with the following principles. Legislate special component plan for scheduled castes and scheduled tribes. Institute an authority for SCP and another for TSP with necessary powers to execute the scheduled caste sub-plan and tribal sub-plan at both national and state levels. The authority should have dedicated institutional setup at the central and state level, which shall allocate SCSP, TSP funds to the ministries, departments, duly taking into consideration the developmental needs of SCs and STs. This should enable the ministries, departments to clearly show the schemes formulated for the development of SC and STs under a separate budget head, clearly setting apart a proportion of the total outlays of the plan outlay of the center and states that is equivalent to the population proportion of SC, STs at the national and state level for the development even before the allocations are made to the departments and ministries. Encouraging participations of the concerned communities, CSOs and experts in planning, implementation and evaluation of the schemes. Schemes to be designed innovatively which are non-divertible and non-lapsable and be individual or family oriented or aimed at Basti, hamlet development. No allocation must be allowed where schemes are general in nature and do not have the objective of bridging the gap between SC/ST and the general population. Where allocation and expenditures do not comply with the guidelines, the authority should have power to reallocate or reappropriate the funds to other departments or other schemes and programs. Remember Dr. Baba Saheb Ambedkar ji ka struggle and his aims, his vision, his dreams to bring this society, to eliminate Indian society casteless. This has been the dream of our Baba Saheb Ambedkar, and we need to move towards the annihilation of the caste from this country and to realize our dreams of Baba Saheb Ambedkar. ये जो लेजिस्लेशन का जो सब्जेक्ट है, ज़्यादातर जो ग्रीवेंस है वो ये है कि जो बजट एलोकेशन होती है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, वो बजट एलोकेशन होने के बाद भी उस एस्पेक्ट पे या उस सब्जेक्ट पे उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा लेजिस्लेशन गवर्नमेंट लेके आती है तो इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी और इससे फ़ायदा होगा। नए नए तरीके से जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है हमारे दलित बंधुओं को, वो सब कानून में आए, वो बहुत ही जरूरी है। तो इस हिसाब से जैसे कि थोड़े छोटे बहुत ऐसे मामले होते हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते, जिसको वो अत्याचार भी नहीं समझते, जैसे कि बाल काट देना, वो समझते कि नहीं ये तो थोड़ा कोई अत्याचार हुआ, किसी के मुंह में कुछ पेशाब कर देना, हम बोलते हैं कि भाई ये अत्याचार नहीं है, ये मानवता के खिलाफ बड़ा अत्याचार है। ये SC/ST एक्ट के तहत हो या ना हो, ये मानवता के खिलाफ एक अत्याचार। तो ये सारी बातें आए इस पूरे संशोधन में, यही पूरा कैंपेन रहा है। ये एक राजनीतिक लड़ाई है। जब हम वोट देते हैं, हमारे वोट सदियों से लिए जा रहे हैं और परंतु हम लोगों को हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए मित्रों, ये जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, इसको वोट के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा। जब तक हम लोग वोट के साथ जोड़ करके इस लड़ाई को नहीं देखेंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम इस
आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े लोग हैं, निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दलित महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, हर दिन कम से कम 3 दलित महिलाओं के ऊपर रेप की या कोई मारपीट की या गाली गलौज की कोई ना कोई खबर हमें सुनने को मिलती है। और ये भी सुनने को मिलता है कि सरकार उस चीज पे कुछ नहीं कर रही है। तो ये सोचने का प्रश्न हमारे दिमाग में आया कि सरकार दलित महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। माना पूरी दलित कम्युनिटी के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, पर अगर हम उसको हटाकर देखें तो दलित महिलाएं जो है वो ज्यादा उत्पीड़न का शिकार हो रही है। तो NCTHR की एक ऐसा टीम, एक ऐसा छोटा सा ग्रुप सिर्फ दलित महिलाओं के लिए काम करता है और मैं उसी टीम की एक साथी हूँ। दलित और आदिवासी समाज से जुड़े बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जानकारी तक हमें नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि जो गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो महिलाओं पर, दलित आदिवासी महिलाओं पर उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासी दलित उपयोजना को कानून बनाने का मुद्दा हो, चाहे वो अत्याचार निवारण कानून में बदलाव लाने का अभियान हो। हमारा ये जो मकसद है, आप लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग सुन रहे हैं बात को अच्छे से। हमारा मेन मकसद है, जो सभी साथियों ने कहा, पहला आबादी के हिसाब से हमारा आवंटन बजट का आपको पूरा कानून बनाना चाहिए ताकि हमारी महिलाओं का, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का सबका विकास हो सके। दूसरा, ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो सीधे हमारे समाज को लाभ करे, ना कि फ्लाईओवर, ब्रिज, कॉमनवेल्थ गेम में हमारा पैसा लगाया जाए। तीसरी बात कि जो भी पैसा लगाया जा रहा है उसकी अच्छे से निगरानी हो सके और उसके सख्ती से लोगों को उस पर दंड मिल सके जो लोग उस पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पिछले 50-60 साल का जो इतिहास है उसमें ये बात जग जाहिर हो गई है कि दूसरे लोग हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी करने की कोई मंशा नहीं है, उनकी करने की कोई इच्छा नहीं है। अगर हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो स्वयं इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हम आज इस सरकार से हमारे मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति विशेष घटक योजना का लागू करो। करोड़ों पैसे आ रहे हैं सरकार से, लेकिन वो पैसे का क्या करते हैं? हमारे तरक्की के लिए नहीं आते हैं, वो किसी और की तरक्की के लिए जाते हैं। तो आज हमारी यही मांग है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति विशेष घटक योजना है जो सरकार ने हमारे तरक्की के लिए बनाया है, वो सिर्फ हमारे लिए यूज करे। उसके लिए हम लोग एक कानून लागू करने के लिए हमारी मांग है। We have started a campaign on the implementation of the SC/ST/TSP legislation, and we would kindly request the Prime Minister of India to please pass this bill in the coming session. Thank you.